अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विजन। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 22 पढ़ेंगे। लेक्चर 22 जो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, मेटलर्जी ऑफ आयरन। और अलॉय मेटलर्जी ये सब क्या होता है, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दोबारा रिकॉल हुआ है, तो हम पढ़ते चलते हैं। और क्या होती हैं ऐसी फॉर्म जो भी है मेटल्स की, जो कि हमें अर्थ से मिलती है, जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल की फॉर्म, मेटल को, ओरिजिनल मेटल को। क्योंकि मेटल्स जो हैं वो कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है, तो मेटल का वो कंपाउंड जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो होती है ओर। An ore is the naturally occurring compound of a metal from which that metal can be extracted. In the earth crust, metals are generally found in the form of compounds which are found mixed with other substances. These naturally occurring minerals of metals are called ores. For example, halite is the one of ore of sodium, and hematite and magnetite are the ores of iron या Fe। ठीक है, ये वही चीज है जो पीछे पढ़ सके। alloys, alloy क्या होता है? दो या दो से ज्यादा जो होती हैं मेटल्स मिलके मिली होती हैं, और इनकी डिफरेंट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। A material that has metallic properties and is composed of two or more chemical elements of which at least one is a metal. That is, steel is an alloy of carbon in iron. Stainless steel is an alloy of carbon, chromium, and sometimes nickel in iron. ये मिसाल के साथ इसकी डेफिनेशन दे दी है। आगे मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। ये जो प्रोसेस है जिससे ओर के जरिए हम ओरिजिनल मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ obtaining a metal from its ores. There are a number of types of metallurgy. In electrometallurgy, electricity is used to obtain a metal. Electrolysis is carried out of the molten or solution form of the ore, and metal is obtained from at the cathode. यानी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और पिघली हुई हालत में हमें जो है, जो भी हमारी मेटल है, हम उसको ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl बाय द Downs प्रोसेस। In pyrometallurgy, strong heat is used to extract the metal from its ores. For example, iron is extracted from its ores by heating at high temperature. Iron is extracted through pyrometallurgy in a furnace called blast furnace। यानी blast furnace एक होती है, उसके अंदर हम आयरन को डालते हैं। Commonly, hematite and magnetite are used to obtain iron. A number of reaction occurs at high temperature in the blast furnace। वो रिएक्शन कौन कौन से हैं? ये हैं, इनकी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। The reaction occurring in blast furnace are as follows. Reaction in blast furnace: Fe2O3 plus CO। ब्लास्ट हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे मौजूद होगी। वो जब इससे रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और आयरन का ये वाला ऑक्साइड बनता है, 2Fe3O4 प्लस CO2। Fe3O4 प्लस CO, जब ये फर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलती है, 3FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, जब इस ये मिलता है FeO प्लस CO गिव्स अस Fe प्लस CO2, तो हमारे पास ये मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आयरन आ जाता। ये इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। Iron is a common metal. It has been known since prehistoric ages. Iron is soft, malleable, and ductile. Occurrence, यानी हमें कहाँ कहाँ ये किस किस फॉर्म में कैसे कैसे मिलता है। Iron is a common metal. How it occurs? Metallic irons occur in free state in only a few localities in the world. यानी free state में ये some places, कुछ गिनी चुनी places हैं दुनिया में जहाँ ये पाए जाते हैं। In chemical compound, the metal is widely distributed. ज्यादातर ये जो है compound form में होता है। After aluminium, iron is the most abundant of all metals and ranks fourth in the abundance among all three elements in the earth's crust। हमने previous chapter में पढ़ा था कि aluminium जो है
वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, तो उसके बाद फोर्थ मोस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयरन। इट इज फाउंड इन meteorites, usually alloyed with nickel. Iron is found in the crust in the form of ores. Its principal ore is hematite, and other important ores are magnetite, siderite, and limonite. Pyrite, FeS, and the sulfide ore of iron is not processed as an iron ore because it is too difficult to remove the sulfur. Small amount of iron occur in combination in natural waters in plants and as the constituent of blood. ये होगी इसकी अकरेंस। आगे चलते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। व्हाट आर द कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन? आयरन की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, एटॉमिक वेट इज 55.847, प्योर आयरन मेटल melts at about 1535 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स at 2750 डिग्री सेल्सियस। ये उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ। The specific gravity of iron is 7.86. It is a metal which is easily magnetized at ordinary temperature but about at 790 degrees Celsius. The magnetic property of iron disappear क्योंकि हर मैग्नेट जो है एक खास टेम्परेचर के पास जाने गुजरने के बाद उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट जो होता है मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करता है। आगे चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। Some chemical properties of iron are: iron reacts with a number of elements. For example, it make compound with halogen. Halogens कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन ये अलग से दिए हुए हैं, हैलोजेंस इस तरह से नाम लिखते हैं। Iron reacts with acid and displaces hydrogen from dilute acids. It reacts with the oxygen to form ferrosulfuric acid, Fe3O4। रस्ट मीन जंग लगना जो होता है। आयरन जो है वो जब उस आयरन ऑक्साइड बनाता है तो हम उसको कहते हैं कि उसको जंग लग गया। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, आयरन अंडरगोस डिटोरिएशन और corrosion and forms a reddish brown flaky hydrated ferric acid oxide, commonly known as rust, जिसको हम आम जुबान में जंग के नाम से जानते हैं। When iron is dipped into concentrated nitric acid, it forms a layer of oxide that rendered it passive. That is, it does not react chemically with acids or other substances. uh, इस ये वो चीज है जो मेटल्स होती हैं, जो आयरन वगैरह, उनको जो रस्टिंग से बचाने के लिए अप्लाई किया जाता है। वो बताया कि जब नाइट्रिक एसिड के अंदर इसको डिप किया जाता है तो उसको जंग नहीं लग सकती। ये सम यूजेस ऑफ आयरन। यूजेस ऑफ आयरन क्या है? Iron has a wide variety of application. It is used in process forms such as wrought iron, cast iron, and steel ये उसके types हैं। Commercially, pure iron is used for the production of galvanized sheet metal of electromagnets। क्योंकि ये मैग्नेटिक, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये इस चीजों में यूज होता है। Many compounds of iron are used in different purposes. Ferrous sulfate, FeSO4, which is also called green vitriol purpose. It is used as mordant in dyeing and a tonic medicine and in the manufacture of ink and pigments। यहाँ FeSO4 जो लिखा है, 4 यहाँ पे नीचे आना है सबस्क्रिप्ट में। मेटलर्जी ऑफ आयरन, यानी आयरन को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन की एक्सट्रैक्शन के ये कुछ स्टेप्स हैं। व्हाट आर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस? सबसे पहले होती है कंबशन। कंबशन में क्या है? कंबशन ऑफ कोक है, यानी कार्बन की कंबशन। जब कंबशन हो रही होती है तो इन द फॉर्म ऑफ एयर है, आग लगी है तो कार्बन के साथ उसका ऑक्साइड बनेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस हीट, CO2 प्लस C गिव्स अस 2CO। कंबशन में यूजुअली कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। रिडक्शन ऑफ Fe2O3, कार्बन जब इससे मिलती है 2Fe2O3 प्लस 3C गिव्स अस 4Fe।
+3 CO2। हमें पता है जब किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाए या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाए या उसके चार्ज कम हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन हुई। तो यहाँ पे आयरन के अंदर से ऑक्सीजन एलिमिनेट हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी रिडक्शन हो गई है। ये दो तरह से हो सकती है, खाली कार्बन के मिलने से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। रिजल्ट में हमेशा हमारे पास आयरन मिल जाएगी, जैसे कि Fe2O3+3CO गिव्स अस 4Fe+3CO2। कैल्सिनेशन, CaCO3 प्लस हीट गिव्स अस CaO+CO2, ये कैल्सिनेशन है। स्लैग फॉर्मेशन, ये स्लैग है, ये क्यों पर आ जाएगा और इसलिए इजी टू मतलब निकाल लेंगे। CaO+SiO2 gives us CaSiO3। CaO+Al2O3 gives us CaAlO twice. What are the products which are formed in the blast furnace? कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? पिग आयरन मिलता है हमें, जो कि 93 to 95% आयरन है, 3 to 5% कार्बन है और 1% सिलिकॉन है। उसके अंदर वेस्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्लैग बना है जो कि CaSiO3 एंड CaAlO2 ट्वाइस। पिग आयरन जो है वो क्या होता है? पिग आयरन जो है आयरन की एक फॉर्म है जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। पिग आयरन यूजुअली रेफर्स टू द आयरन अलॉय विद द कार्बन कंटेंट ऑफ 2 to 4.3%, as also known as cast iron. Beside carbon, pig iron also contains silicon, manganese, and small amount of sulfur and the phosphorus. It cannot be forged but can be cast. According to the presence of carbon under the different forms, pig iron can be divided into steel making pig iron, foundry pig iron, and ductile iron. What is cast iron? This is a pig iron melted with scrap iron. It is the least pure of all forms of carbon, all forms of iron containing 93% of iron and 5% of carbon। यानी जो भी हमारी आयरन की फॉर्म्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्प्योर इम्प्योर जो है वो कास्ट आयरन होती है। इस पे 5% कार्बन कंटेंट होता है। द कास्ट आयरन विद द कार्बन कंटेंट ऑफ लेस देन 0.2% इज कॉल्ड रॉट आयरन और प्योर आयरन। द कास्ट आयरन विद कार्बन कंटेंट ऑफ 0.2 to 1.7% is called cast steel. So cast steel is a kind of special cast iron. More than 2% of content is called pig iron. What is wrought iron? It is the purest form of iron when impurities are removed. It contains 0.5% impurities. Wrought iron is very soft, plastic, and easily deformed, but its strength and hardness are lower, so not widely used. ये ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा स्टील यूज होता है। स्टील इज द कॉमन फॉर्म ऑफ आयरन विच यूजुअली कंटेन्स 0.1 to 2% carbon. Steel has many types. Since the pure iron metal is not very strong, impurities are added into it. For example, carbon is added to the iron to make steel, which is more stronger than iron. क्योंकि जो आयरन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्योर आयरन इतना वो नहीं होता, यूज नहीं होता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हमेशा आयरन के अलॉय बनाए जाते हैं, आयरन के अंदर कोई ना कोई और एलिमेंट मिक्सअप किया जाता है जिससे, और उसका कंटेंट कितना है, वो जो चीज ऐड की हुई है उसकी परसेंटेज से आयरन की टाइप्स डिफर करती हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट स्टूडेंट तक शेयर करें। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।